أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو ورچوئل کلاس پریس اسٹڈی ڈگری کالج اسٹوڈنٹس ہم آپ سے بات کریں گے سبجیکٹ کاسٹ اکاؤنٹنگ بیکام پارٹ 2 کے چیپٹر جاب اور کاسٹنگ کے سیریز کے لیکچر 3 کی. تو اس میں دیکھیں گے کہ آپ سے اور کون کون سی پروبیبل پرابلمس ڈسکس کی جا سکتی ہیں. تو آئیے اپنے کویشچن کی طرف پڑھتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہاں کوشچن میں بتایا گیا کہ کاشف مینوفیکچرنگ کمپنی یوزز پری ڈیٹرمائن ایف او ایچ ٹو انڈیویجول آرڈرز اوور ہیڈ ریٹ از اپلائڈ ان ڈپارٹمنٹ اے on the basis of machine hours and in department B on the basis of direct labor hours. At the beginning of the year 2018, management made the following budget estimates. یعنی کہ جو کمپنی نے کچھ بجٹ ایسٹیمیٹس کیے تو آئٹمس سے ڈپارٹمنٹ اے اور بی کے لیے ڈائریکٹ لیبر 5,50,000 ڈپارٹمنٹ بی 19,20,000 فیکٹری اوور ہیڈ جو اسٹیمیٹ کیا گیا وہ 10,80,000 ہے جبکہ ڈپارٹمنٹ بی کے لیے 12 لاکھ روپیز ایسٹیمیٹ کیے گئے اور جو ایسٹیمیٹڈ مشین آرز ہیں فور ڈپارٹمنٹ اے وہ 72,000 ہے جبکہ ایسٹیمیٹڈ جو آرز ہیں ڈپارٹمنٹ بی کے لیے مشین آرز وہ 90,000 ہے. اسی طریقے سے ڈائریکٹ لیبر آرز کی بات کی جائے تو ڈائریکٹ لیبر آرز جو ہے ڈپارٹمنٹ اے کے لیے جو یوز ہوں گے وہ 25,000 ہوں گے جبکہ ڈپارٹمنٹ بی کے لیے 1 لاکھ ڈائریکٹ لیبر آرز یوز ہوں گے. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. پھر بتایا گیا کہ پروڈکشن آرڈر نمبر 250 واز started in the middle of December and completed 2 weeks later. یعنی کہ تقریباً جو ہے دسمبر کے اینڈ تک یہ جو جاب تھی 250 جس کا آرڈر نمبر تھا وہ مکمل ہو جاتی ہے. اور the cost record for the job showed following information. آئٹمس بتائے گئے جاب نمبر 250 کے 48,000 یونٹس جو ہے وہ اس پروڈکٹ کے پروڈیوس کیے گئے ہیں. ڈپارٹمنٹ اے اور بی دونوں موجود ہیں آپ کے پاس. بتایا جاتا ہے کہ کاسٹ آف را مٹیریل یوزڈ آن جاب 46,000 ہے اور 18,000 ہے. اسی طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ لیبر کاسٹ 50,000 ہے اور ڈپارٹمنٹ بی کی 1,18,000 ہے. اسی طرح مشین آرٹس کے حوالے سے انفارمیشن بتائی گئی کہ مشین آرٹس جو یوز ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ اے میں وہ 3600 مشین آرٹس جو ہے وہ یوز ہوئے ہیں جبکہ ڈپارٹمنٹ بی میں 5,000 مشین آرٹس یوز ہوئے ہیں فور دا پروڈکشن آف دس جاب نمبر 250. اور اسی طریقے سے ڈائریکٹ لیبر آرٹس کے حوالے سے انفارمیشن دی گئی کہ 4,000 ڈائریکٹ لیبر آرٹس یوز ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ اے میں جبکہ ڈپارٹمنٹ بی میں 7,000 ڈائریکٹ لیبر آرٹس کو یوز کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ریکوائرمنٹ میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ ڈیٹرمائن کریں اوور ہیڈ ریٹ فور اپلائنگ اوور ہیڈ کاسٹ ٹو جاب نمبر 250. تو کیلکولیٹ کرنا ہے ٹوٹل کاسٹ اینڈ کاسٹ آف جاب نمبر 250 یعنی کہ پر یونٹ کاسٹ ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس کویشچن تھا. کویشچن کو تھوڑا سا سمرائز کرتے چلیں بتاتے چلیں. یہاں اس کویشچن میں ایکچولی ہمیں یہ جو پہلا جو ٹیبل دیا گیا ہے یہ ہمیں ایسٹیمیٹس بتائے گئے ہیں تاکہ اس کی مدد سے ہم اپنے جو پر یونٹ جو ہمارے پاس مشین آرز ہیں پر آر کاسٹ نکال سکیں یا پر ڈائریکٹ لیبر آر کاسٹ نکال سکیں. تو یہ ایسٹیمیٹس ہمیں اس لیے بتائے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں جو بیسکلی کام کرنا ہے ایک تو ہم ریکوائرمنٹ اے میں اپنے ریٹس کو ڈٹرمائن کریں گے جو کہ ہم نے استعمال کرنے ہیں ٹو کیلکولیٹ دا ٹوٹل کاسٹ آف جاب نمبر 250. اور پھر اس کے بعد ہم نے سیکنڈ ریکوائرمنٹ یہی پوری کرنی ہے کیلکولیٹ کرنی ہے ٹوٹل کاسٹ اور یونٹ کاسٹ آف جاب نمبر 250. تو آئیے اسٹوڈنٹس اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ڈائریکٹ لیبر پر آر کی بات کر لیتے ہیں. تو یہاں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ اے موجود ہے اور ڈپارٹمنٹ بی موجود ہے. تو ڈپارٹمنٹ اے میں بتا دیا گیا تھا کہ آن دا بیسس آف ڈائریکٹ آن دا بیسس آف مشین آر جو ہے وہ ہمیں یہاں اپنی جو کاسٹ ہے اس کو کمپیوٹ کرنا ہے. تو ہم نے جو ہے یہاں اپنے پاس اس کو کمپیوٹ کیا تو ہمارے پاس جو ایف او ایچ موجود تھا وہ 10,80,000 روپے موجود تھا جبکہ جو مشین آرز ہم نے یوز کیے تھے وہ 72,000 مشین آرز ہم نے یوز کیے تھے اپنے
ڈپارٹمنٹ اے میں، چونکہ ہمیں بتا دیا گیا کہ ڈپارٹمنٹ اے میں جو ایف او ایچ کاسٹ کا ریٹ ایف او ایچ جو ڈٹرمائن کرنی ہے وہ ہم نے پر یونٹ وہ ہم نے پر آر وہ ہم نے اپنی مشین آرٹس کی بیسس پہ کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ بی کی۔ تو ڈپارٹمنٹ بی میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ آن دا بیس آف ڈائریکٹ لیبر آرٹس کرنے ہیں، تو اسی لیے ہم نے یہاں جو ایف او ایچ تھا ایف او ایچ کی جو ٹوٹل ایسٹیمیٹڈ کاسٹ اس کو ڈیوائڈ کیا ایسٹیمیٹڈ ٹوٹل ڈائریکٹ لیبر آرٹس سے، جو کہ 1 لاکھ ہیں، اور اس طریقے سے ہم نے دونوں کی جو پر یونٹ پر آر کاسٹ ہے اس کو ہم نے کیلکولیٹ کیا۔ تو ڈپارٹمنٹ اے میں 10,80,000 کو ڈیوائڈ کیا ہم نے 72,000 سے، تو ₹15 پر مشین آر ہمارے پاس ایف او ایچ آ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ڈپارٹمنٹ بی میں ہمارے پاس 12 روپیز پر ڈائریکٹ لیبر آر کا ایف او ایچ آ جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس اور اب بات کرتے ہیں آپ سے کس طریقے سے ہم نے اپنی جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس کو کمپیوٹ کیا۔ تو ریکوائرمنٹ اے کا جواب آپ کو مل چکا ہے، ₹15 پر مشین آر ایف او ایچ ہم نے کمپیوٹ کیا۔ اسی طریقے سے ₹12 پر ڈائریکٹ لیبر آر ہم نے پر ایف او ایچ آر آن دا بیسس آف ڈائریکٹ لیبر ہم نے اس کو یہاں کمپیوٹ کیا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ اے اور بی کی ہیڈنگس ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو جو را مٹیریل یوز کیا گیا تھا ڈپارٹمنٹ اے میں وہ 46,000 روپیز کیا گیا تھا، جبکہ ڈپارٹمنٹ بی میں 80,000 روپیز کا یہ مٹیریل یوز کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے بات کرتے ہیں ڈائریکٹ لیبر کی۔ تو ڈائریکٹ لیبر بھی ڈپارٹمنٹ اے اور بی کی موجود ہے۔ 50,000 روپیز کی ڈائریکٹ لیبر یوز کی گئی تھی ڈپارٹمنٹ اے میں، جبکہ 118,000 کی جو ڈائریکٹ لیبر ہے وہ یوز کی گئی تھی ڈپارٹمنٹ بی میں۔ اور اس طریقے سے اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور اپنے لاسٹ کمپوننٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارا ایف او ایچ ہے۔ تو ایف او ایچ اپلائیڈ ڈپارٹمنٹ اے کی بات کریں تو یہاں یاد رکھیے ہم نے مشین آرٹس کی بیسس پہ ایف او ایچ کو کمپیوٹ کرنا ہے۔ تو ڈپارٹمنٹ اے کے لیے جو مشین آرٹس یوز کیے گئے ہیں ہم انہیں کو کنسیڈر کریں گے۔ تو مشین آرٹس 3600 یوز کیے گئے تھے، اور ہمارے پاس جو ہم نے ایف او ایچ کو کمپیوٹ کرا وہ آن دا بیسس آف مشین آرٹس ہی کرا ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس 15 روپیز پر مشین آر ایف او ایچ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو 3600 کو ملٹیپلائی ہم نے 15 کیا تو 54,000 کی اماؤنٹ ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح کے اسٹوڈنٹس اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ بی کی۔ تو ڈپارٹمنٹ بی کے لیے ہم نے جو یوز کیے تھے وہ لیبر آرٹس کی بیسس پہ ایف او ایچ کو ہم نے کمپیوٹ کرنا ہے۔ تو ہم نے جو ہے لیبر آر جو یوز کیے تھے فور دس پروڈکشن وہ 7,000 تھے، جبکہ یہاں ہم نے جو اپنا ریٹ کمپیوٹ کیا ہے ₹12 کیا ہے پر ڈائریکٹ لیبر تو ایف او ایچ آن دا بیس آف ڈائریکٹ لیبر آرٹس۔ تو اسی طریقے سے ہم نے 7,000 کو ملٹیپلائی بائی 12 کیا تو ہمارے پاس 84,000 کی یہاں یہ اماؤنٹ آ جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس اب اگر ہم ان تینوں ایلیمنٹس کی کاسٹ کو ایڈ کر لیں تو ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ آف ڈپارٹمنٹ اے اینڈ بی رسپیکٹیولی آ جائے گی فور جاب نمبر یا آرڈر نمبر 250۔ تو ٹوٹل کاسٹ کی بات کرتے ہیں 1,50,000 ڈپارٹمنٹ اے سے جو ہے کاسٹ وہ انکرڈ ہوئی ہے، جبکہ ڈپارٹمنٹ بی نے 2,82,000 یہاں اس کے اوپر خرچ کیا ہے۔ تو اگر ہم ٹوٹل کاسٹ آف ڈپارٹمنٹ اے اینڈ بی دونوں ملا لیں یعنی کہ آپ اس میں ایڈ کر لیں یعنی کہ 1,50,000 اور 2,80,000 تو ہمارے پاس جو اماؤنٹ آ جائے گی وہ ہماری ٹوٹل کاسٹ ہو جائے گی ڈپارٹمنٹ اے اینڈ بی کی۔ یہاں چونکہ ڈپارٹمنٹ اے اور بی کی الگ الگ کاسٹ ہم نے معلوم کی ہے تو اس کو ہم نے یہاں سیپریٹلی ہی لکھا ہے۔ اب کاسٹ پر یونٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ تو کاسٹ پر یونٹ کی بات کی جائے تو ڈپارٹمنٹ اے میں جو پروڈکشن ہوئی ہے وہ 1,50,000 میں 48,000 یونٹس کو پروڈیوس کیا گیا۔ تو ٹوٹل کاسٹ جو کہ ہم نے یہاں نکالی ڈپارٹمنٹ اے سے ڈیوائڈ کریں گے اس کو 48,000 جو کہ ہمارے پاس موجود ہے
क्वांटिटी, तो हमारे पास 3.125 पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। इसी तरीके से 2,82,000 को डिवाइड किया हमने 48,000 यूनिट से, तो हमारे पास इसकी भी ये अमाउंट आ जाती है। तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट यूनिट्स को ऐड कर लें तो हमें टोटल पर यूनिट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 250 मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या बात की गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बाज़ एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस एक मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है जिसको आपने सॉल्व करके उसकी बुनियाद पर अपने रिक्वायरमेंट्स के जवाब देने हैं। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। A manufacturing company job cost records yielded the following information. The company uses perpetual inventory system. इसके बाद में बता दिया गया कि जॉब नंबर्स आपको बता दी गई हैं, डेट्स बता दी गई हैं कि स्टार्ट कब की गई, फिनिश कब हुई और सोल्ड कब की गई। और उसके बाद आपको बता दिया गया टोटल कॉस्ट ऑफ जून जो है वो 30 को आपको जो उनकी कॉस्ट थी इन जॉब्स की वो बता दी गई है। और मज़ीद जो कॉस्ट ऐड की गई इन द मंथ ऑफ जुलाई आपको वो भी डिटेल आपको यहाँ बता दी गई है। स्टूडेंट्स आपने इस मैट्रिक्स को सबसे पहले गौर से इसको रीड कर लेना है, कम से कम 2 से 3 बार आप इसको तसल्ली के साथ रीड कीजिए, तो फिर आपको इसको सॉल्व करने में किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट में आपसे कहा गया कि कंप्यूट करना है कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एट जून 30 एंड जुलाई 31, यानी कि वर्क इन प्रोसेस जून 30 और जुलाई 31 का मतलब है कि आपसे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरीज की बात की गई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए फिनिश गुड्स एट जून 30 एंड जुलाई 31 की बात की गई, तो इसका मतलब है कि फिनिश गुड्स एंडिंग की आपसे यहाँ बात की जा रही है फॉर द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने बतानी है जून एंड जुलाई की। और उसके बाद आपने ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि आपको पहले कॉलम में जॉब नंबर्स दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और आपको डेट्स बता दी गई कि ये जॉब नंबर 1 कब स्टार्ट की गई थी, फिनिश कब की गई और सेल कब की गई। तो इस तरीके से आपको ये डेट्स बता दी गई है और ये आपको कॉस्ट के कॉलम्स दिए गए हैं जिसमें आपको ये बताया गया कि किस जॉब के ऊपर किस जॉब को कब यानी कि स्टार्ट किया गया या उस पर कितनी कॉस्ट इनकट की गई। तो याद रखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि जॉब नंबर 1 पे 700 यूनिट्स 700 की अमाउंट इनकट की गई है इन द मंथ ऑफ जून, और बाकी इसके अलावा जुलाई में ये गई नहीं है, तो उसका मतलब जुलाई में इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर बात की जाए आपसे 1700 की जो जॉब नंबर 2 है, तो ये जून 3 को स्टार्ट की गई, यानी कि जून में स्टार्ट की गई, जून में ही ये फिनिश्ड हुई और जून में ही ये सेल की गई। तो जुलाई में भी इसका कोई रोल आपको नज़र नहीं आता। इसी तरह अगर बात करें आपसे 2400 की जो कि जॉब नंबर 3 की टोटल कॉस्ट है, तो यहाँ आपने इस जॉब को स्टार्ट किया था जून 3 को और उसके बाद इसको जून 30 को ही फिनिश किया गया, जबकि इसकी जो सेल की गई है वो जुलाई की 1 में की गई है। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि इस जॉब के ऊपर भी कोई कॉस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई इनकट नहीं हुई, क्योंकि ये स्टार्ट और फिनिश भी इन द मंथ ऑफ जून ही हो गई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जॉब नंबर 4 की। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि जॉब नंबर 4 स्टार्ट तो जून 17 को की गई, लेकिन जुलाई की 24 को ये फिनिश्ड हुई है, और जून में जो इसके ऊपर कॉस्ट इनकट की गई 200 रुपीज़ कॉस्ट इनकट की गई, जबकि इसके ऊपर जो फर्दर कॉस्ट इनकट की गई वो इन द मंथ ऑफ जुलाई की गई ₹500। तो इट मीन्स कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब हो जाएगी एट द टाइम ऑफ फिनिश, तो वो आपके पास 700 की अमाउंट होगी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और यहाँ आपसे जॉब नंबर 5 के हवाले से भी कुछ इसी तरह बात की गई कि जून 29 को ये जॉब स्टार्ट की गई और जुलाई में ये फिनिश्ड हुई। इसका मतलब है कि जून में भी एक कॉस्ट इनकट हुई 400 रुपीज़ की, जबकि जुलाई में इसी के ऊपर मज़ीद जो कॉस्ट इनकट की गई वो 1600 रुपीज़ की कॉस्ट इनकट की गई। तो इट मीन्स कि एट द टाइम ऑफ फिनिश ये
जो जॉब है इसकी एक्यूमुलेटेड कॉस्ट 2000 रुपीज़ की होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे जुलाई के जो जॉब नंबर 6 है वो जुलाई 8 को स्टार्ट की गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ जून में इसकी कोई भी कॉस्ट इनकट नहीं हुई है, जुलाई में ये पूरी 800 की कॉस्ट इनकट हुई है। इसी तरीके से जॉब नंबर 7 भी जुलाई में ही इनकट की गई, तो इसीलिए सिर्फ जुलाई के ही कॉलम में आपको इसकी कॉस्ट नज़र आ रही है। इसी तरह बात करें जॉब नंबर 8 की, तो जुलाई 30 को ये स्टार्ट की गई, तो पूरी की पूरी कॉस्ट 2900 की आपको जुलाई में नज़र आ रही है, इसका जून से कोई ताल्लुक नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हमने जस्ट करना ये, आइए अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अपने सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे बिल्कुल उसी तरह, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज है। वो चेंज ये है कि आप यहाँ डेट्स वाइज कॉलम नहीं बनाएंगे, बल्कि आप यहाँ मंथ वाइज कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मंथ है, मई का मंथ यूज़ किया गया है, तो मई का मंथ हम लिखेंगे जून, जुलाई और फिर अगस्त। याद रखिए हमारे मेन हेडिंग्स हैं कॉलम्स की, जबकि इनमें जो सब कॉलम्स हम खोलेंगे तो हर एक मंथ के साथ हम 3 कॉलम्स खोलेंगे, स्टार्ट का कॉलम, फिनिश्ड का कॉलम और सोल्ड का कॉलम। और फिर इसी तरीके से हम जून के लिए भी स्टार्ट, फिनिश्ड और सोल्ड के कॉलम को खोलेंगे। इसी तरह जुलाई में भी हम स्टार्ट, फिनिश, सोल्ड और अगस्त में स्टार्ट, फिनिश एंड सोल्ड के कॉलम्स को बिलतरतीब लिखेंगे। और उसके बाद अब ये पहचान लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो स्टार्ट का मतलब ये होता है कि हमने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की है, यानी कि माल हमारा फैक्ट्री में प्रोडक्शन में चला गया है। और हमने आपको बताया था कि जो भी स्टेज होती है फैक्ट्री में माल की, वो वर्किंग प्रोसेस या गुड्सिंग प्रोसेस के नाम से जानी जाती है। और फिनिश गुड्स को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो सोल्ड का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चूँकि यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो याद रखिए अभी हम जितना भी काम कर रहे हैं वो सारा एट कॉस्ट होता है, तो इसीलिए हमने सोल्ड के कॉलम को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नाम दिया। तो इसी तरीके से हमने ये सारी चीज़ें तमाम कॉलम्स में मेंशन कर दी बिलतरतीब। आइए अब जॉब्स की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जॉब नंबर 1 की बात करते हैं। तो जॉब नंबर 1 अगर आप क्वेश्चन को उठाकर रीड करें, तो जॉब नंबर 1 जो स्टार्ट की गई थी वो इन द मंथ ऑफ मई की गई थी। और इसके अलावा इस जॉब को जो फिनिश किया गया था वो जून में फिनिश किया गया था। तो इसलिए यहाँ आप देखें कि फिनिश्ड जो है हमने जून के फिनिश में इस जॉब को एक बार फिर कॉपी किया। इसी तरीके से जब इसको बेचा गया तो जून में ही इसको सेल किया गया था, तो आपने इसको सोल्ड के कॉलम में जून में ही लिखा। उम्मीद करते हैं स्टडी बात आपकी समझ आई होगी। सबसे पहले हम यहाँ यही करेंगे कि जो जॉब जिस वक्त बेची गई है, जिस वक्त फिनिश की गई या जिस वक्त प्रोडक्शन में डाली गई, उसको आपने अपने उसी कॉलम में, उसी रिस्पेक्टिव कॉलम में लिख लेना है। तो जॉब नंबर 1 स्टार्ट की गई थी मई में, तो हमने स्टार्ट के कॉलम में इसको लिखा। इसी तरीके से जॉब नंबर 2 की अगर हम बात करें, सॉरी जॉब नंबर 1 की ही फिनिश्ड होने के वक्त की बात करें तो वो था जून, तो हमने इसको फिनिश गुड्स जून के कॉलम में ही लिखा। और जब ये सेल की गई तो ये जून में ही सेल की गई, तो इसलिए हमने जून के सोल्ड के कॉलम में इसको यहाँ लिख दिया। आइए इसी तरीके से अपनी बाकी तमाम जॉब्स को भी अब हम पोस्ट कर लेते हैं। तो हमारी जो जॉब नंबर 2 थी वो स्टार्ट की गई थी जून में, फिनिश्ड भी जून में हुई और सेल भी ये जून में ही की गई, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ जून के कॉलम में ही आपको नज़र आ रही है। इसी तरीके से जॉब नंबर 3 की अगर बात की जाए तो जॉब नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास स्टार्ट की गई थी जून में 2400, फिनिश्ड भी जून में ही की गई 2400, लेकिन जो बेची गई है, सोल्ड की गई, वो जुलाई में की गई, तो इसलिए इसको हमने जुलाई के कॉलम में, सोल्ड के कॉलम में इसको यहाँ मेंशन किया।
تو یاد رکھیے اسٹوڈنٹس جو بھی جاب یہاں بنی ہے وہ آپ کے پاس ورک ان پروسیس میں جب پروڈکشن میں ہے تو ہم نے اس کو ریکارڈ کیا، کاسٹ انکرڈ کی گئی، جب فنشڈ ہوئی تو ہم نے کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ یا فنش گڈس کے کالم میں لکھا، اور جب اس کو سیل کر دیا گیا تو جس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر اس کو سیل کیا گیا ہے، جس منتھ میں سیل کیا گیا ہے، اس منتھ کے سیل کے کالم میں اس کو پھر لکھ دیا گیا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ سے جاب نمبر 4 کی۔ تو جاب نمبر 4 200 کی جو کاسٹ اس کی انکر کی گئی تھی وہ جون میں کی گئی تھی اور یہ اسٹل ان پروسیس ہے، تو اسی لیے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فنش اور سولڈ کے کالم میں اس کو ابھی نہیں لکھا گیا، جبکہ اس کے اوپر مزید جو کاسٹ انکر کی گئی وہ جولائی میں بھی کی گئی 500 روپیز کی، تو اس طریقے سے 200 روپیز یہ اور 500 روپیز یہ ٹوٹل جو کاسٹ انکرڈ ہوئی ہے وہ 700 کی کاسٹ انکرڈ ہوئی ہے آپ کی جاب نمبر 4 کے اوپر۔ تو اب جب یہ فنشڈ ہوگی تو ہم نے آپ کو کوشچن کے وقت بھی بتایا تھا کہ یہ ایکیومولیٹ ہو جائیں گی کاسٹ اور ٹوٹل کاسٹ یہ فنشڈ ہوگی تو 200 + 500 700 ہو جاتا ہے، اور چونکہ یہ بکی بھی جولائی میں ہی تو اس لیے 700 کی یہ کاسٹ یہاں سے سولڈ کے کالم میں جولائی میں ہی لکھی گئی۔ اسی طریقے سے جاب نمبر 5 کی بات کر لیتے ہیں۔ تو جاب نمبر 5 400 روپیز کی کاسٹ یہ انکرڈ ہوئی تھی ان دا منتھ آف جون، اس کے بعد 1600 جولائی میں دوبارہ اس کے اوپر کاسٹ انکرڈ کی گئی 1600 کی، تو 400 + 1600 2000 کی یہ ٹوٹل اماؤنٹ ہو جاتی ہے، جسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ تو 2000 کی یہ جو کاسٹ ہے یہ ہماری یہاں ٹوٹل انکرڈ ہوئی ہے ان دا منتھ آف جولائی، تو جولائی میں ہی اس کو ہم فنش کر رہے ہیں 2000 روپیز سے، اور چونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 400 کی جو اماؤنٹ ہے وہ تو جون سے آ رہی ہے اس جاب کی، لیکن جولائی میں بھی اس کے اوپر 1600 مزید کاسٹ انکرڈ کی گئی، تو ٹوٹل ایٹ دا ٹائم آف فنش جب یہ گڈس موجود ہوں گی وہ ہمارے پاس 2000 روپیز کی ہیں، تو یہ فنش گڈس ہمارے پاس 2000 روپیز سے یہاں موجود ہے، اور اب اس 2000 روپیز کی جو گڈس ہیں اس کو سیل کیا گیا ان دا منتھ آف اگست، تو 2000 روپیز ہمارے پاس اگست میں آ جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ، پھر اس کے بعد ہم نے جاب نمبر 6 کی بات کر لینی ہے۔ تو جاب نمبر 6 ہماری انکرڈ جو ہوئی تھی وہ جولائی میں ہی ہوئی تھی، فنشڈ بھی یہ جولائی میں ہی ہوئی ہے، اور سیل بھی یہ جولائی میں ہی کی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹس ہم نے اس کو تینوں کالمس میں جولائی کے لکھ دیا۔ اب جاب نمبر 7 کی بات کر لیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس جاب نمبر 7 ہے وہ ہماری اسٹارٹ کی گئی تھی جولائی میں، اور اس کو فنش کیا گیا اگست میں، تو اس لیے ہم نے اس کو اگست میں لکھا، اور اس کو سیل بھی اگست میں کیا گیا تو اس کو بھی ہم نے اگست کی ہی کالم میں لکھا۔ اسی طریقے سے بات کر لیتے ہیں جاب نمبر 8 کی جو کہ لاسٹ جاب ہے 2900 کی، یہ اسٹارٹ کی گئی تھی جولائی میں، اور جولائی میں اسٹارٹ کرنے کے بعد اس کو جو فنش کیا گیا اور سیل کیا گیا وہ اگست میں کیا گیا، اس لیے اگست کے فنشڈ اور سولڈ کے کالم میں یہ ویلیو ہم نے یہاں لکھ دی۔ امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے ایکچولی کرنا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ان دا منتھ آف جولائی کیا ہم نے ورک ان پروسیس اینڈنگ میں چھوڑا، کیا ہم نے فنش گڈ سینڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، یا ہماری کیا کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے۔ تو یاد رکھیے اسٹوڈنٹس یہ جو کالمس ہیں ان کالمس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو چیز ورک ان پروسیس تھی اگر وہ کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ کے کالم میں آ گئی تو اٹ مینس کہ وہ کام اب وہ فنشڈ ہو چکا ہے، اس لیے وہ ورک ان پروسیس نہیں رہا، اور جو آپ کے پاس ورک ان پروسیس کے کالم میں بچ جائے گا، یعنی کہ جو آپ کا جو کاسٹ ہے اگر وہ ورک ان پروسیس میں موجود ہے اور وہ کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ کے کالم میں ٹرانسفر نہیں کی گئی تو اٹ مینس کہ وہ آپ کے پاس ورک ان پروسیس اینڈنگ ہوگا۔ تو یہاں اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس ورک ان پروسیس
میں 700 रुपये की जो जॉब नंबर 1 थी वो स्टार्ट हुई थी, वो एज इट इज़ यहाँ मौजूद है, एज इट इज़ यहाँ मौजूद है। वो फिनिश्ड मई में नहीं हुई है और सेल भी नहीं हो सकती, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि फिनिश नहीं हुई है। तो इट मीन्स कि ये जो 700 हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के तौर पे ही आपके पास यहाँ मई में मौजूद हैं। तो याद रखिए वर्क इन प्रोसेस एंडिंग मई में जो आपके पास मौजूद है वो 700 मौजूद है। तो कि हमें कहा नहीं गया था, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बताते चलें कि ये 700 की जो अमाउंट है ये आपकी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि ये फिनिश्ड नहीं हुई है, यानी कि ये नेक्स्ट वाला में मूव नहीं की है इस मंथ में, तो इसलिए ये हमारी फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है। जबकि यहाँ कोई फिनिश गुड्स मौजूद नहीं है मई में और कोई भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। आइए अब जून की तरफ आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जून में जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई थी 1700 यूनिट्स की, सॉरी 1700 की कॉस्ट की, 2400 की कॉस्ट की, 200 की कॉस्ट की और 400 की कॉस्ट की। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ आप देख सकते हैं ये 700 तो यहाँ बिक रहा है, ये तो वर्क इन प्रोसेस से आया है जो लास्ट मंथ का एंडिंग था। तो इट मीन्स कि जो वर्क इन प्रोसेस मई का एंडिंग था वो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग बन जाएगा जून का। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। जो कॉस्ट हमने जून में इनकर की 1700, 2400, 200 एंड 400, तो अब इसमें से जो कॉस्ट फिनिश गुड्स के कॉलम में जा चुकी हैं वो हमारी वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहेंगी। तो देख सकते हैं कि 1700 की जो कॉस्ट थी वो फिनिश गुड्स के तौर पे कंसीडर कर ली गई है। तो इट मीन्स कि अब ये वर्क इन प्रोसेस यहाँ से ख़त्म हो गया क्योंकि ट्रांसफ़र हो चुका है फिनिश गुड्स में। इसी तरीके से 2400 की अगर आपसे बात करें तो ये जो 2400 है आपके पास, ये 2400 भी आपका फिनिश्ड हो चुका है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के तौर पे जा चुका है। और अगर आपसे बात की जाए आपके जो नेक्स्ट जो 4th और 5th जो आपने कॉस्ट इनकट की थी तो आप देख सकते हैं वो यहाँ फिनिश गुड्स के कॉलम में मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि स्टिल इन प्रोसेस हैं। तो ये जो दो कॉस्ट हैं आपकी 200 और 400, इट मीन्स कि स्टार्ट हुई लेकिन अभी फिनिश नहीं हुई। तो इट मीन्स कि ये आपकी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है। तो यहाँ इसको हाईलाइट करने का मकसद यही था कि ये दोनों कॉस्ट आपकी फिनिश गुड्स एंडिंग वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है। आइए अब बात करते हैं जून की फिनिश गुड्स की एंडिंग की। तो याद रखिए स्टूडेंट्स जो प्रोड्यूस हुआ और जो बिक गया वो इसी तरीके से अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन जो बन तो चुका है लेकिन सेल नहीं हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉलम में ट्रांसफ़र नहीं किया गया, इट मीन्स वो हमारा फिनिश गुड्स एंडिंग है। तो 700 की जो गुड्स फिनिश्ड हुई थी वो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। इसी तरह 1700 वाली जो जॉब थी वो भी सेल की जा चुकी है, वो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बन गई है। जबकि जो 2400 की जो फिनिश की गई थी गुड्स ये अभी तक नहीं बिकी, ये हमारे पास एज इट इज़ मौजूद हैं। तो ये 2400 हमारा वर्क इन फिनिश गुड्स एंडिंग हमारा बन जाता है चूँकि ये रिमेनिंग हमारे पास इस वक्त मौजूद है। इसी तरीके से आ जाते हैं अब जुलाई की तरफ। तो जुलाई में भी अगर आप देखें तो कुछ कॉस्ट इनकट की गई है वर्क इन प्रोसेस के तौर पे 500, 1600, 800, 300 एंड 2900 ये कॉस्ट इनकट की गई है। तो याद रखिए जॉब नंबर 4 पे मज़ीद कॉस्ट इनकट की गई 500। तो अब ये जो टोटल फिनिश्ड हुई वो 700 की फिनिश्ड हुई। इसी तरीके से जो 400 की कॉस्ट हमने जॉब नंबर 5 पे जून में इनकट की थी, अब उसके बाद मज़ीद हमने कॉस्ट इनकट की 1600 की, तो ये 2000 रुपीज़ की अमाउंट हो जाती है जो कि फिनिश्ड हो गया। इसी तरीके से जॉब नंबर 6 हमने स्टार्ट की थी जुलाई में, 800 रुपीज़ की कॉस्ट इनकट की गई थी और ये यहाँ फिनिश्ड भी की जा चुकी है, तो इसलिए ये फिनिश गुड्स के कॉलम में भी आ गई। इसी तरह जॉब नंबर 7 और 8 को भी हमने स्टार्ट किया था जुलाई में, लेकिन ये चूँकि फिनिश नहीं हुई हैं इस वक्त ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस के कॉलम में रिमेनिंग है। तो इट मीन्स ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स ये 500 वाली कॉस्ट जो मौजूद है प्रीवियस 200 के साथ ऐड होकर 700 के तौर पे फिनिश्ड हो चुकी है, तो इसलिए ये हमारे वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। इसी तरह ये 2000 की अमाउंट भी 400 प्रीवियस मंथ के प्लस करंट पीरियड से करंट मंथ से
100 तो टोटल 2000 की ये जॉब फिनिश्ड हुई, तो इट मीन्स ये भी अब वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा नहीं रही। 800 की जो कॉस्ट हमने यहाँ इनकर्ड की थी वो भी यहाँ फिनिश्ड हो चुकी है, ये भी अब हमारी कॉस्ट का हिस्सा, वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा नहीं रही। अब जो हमारे पास यहाँ जॉब्स बच जाती हैं वो 300 और 2900 की कॉस्ट की बच जाती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, जो जो यहाँ फिनिश गुड्स के कॉलम में था, अगर वो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कॉलम में ट्रांसफ़र कर चुके हैं तो वो हमारा बिक चुका है, और जो अभी नहीं बिका रह गया है वो हमारा फिनिश गुड्स एंडिंग कहलाएगा। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो यहाँ आपके पास 700 वाली जो कॉस्ट है वो भी बिक गई है, 400 जो आपके पास फिनिश गुड्स एंडिंग के तौर पे आया था वो भी बिक चुका है, और इसी तरीके से 800 वाली जो कॉस्ट जो जॉब आपने फिनिश की थी वो भी यहाँ सेल की जा चुकी है। तो इट मीन्स कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2000 वाली जो कॉस्ट है वो रिमेनिंग है फिनिश गुड्स के तौर पे, तो ये आपकी फिनिश गुड्स एंडिंग के तौर पे कहलाएगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी, और यहाँ जितनी भी कॉस्ट आपकी सोल्ड के कॉलम में इन सबको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगस्त में। तो स्टूडेंट्स अगस्त में हमारे पास यहाँ कोई जॉब स्टार्ट नहीं की गई है, जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग था उसी को हमने यहाँ फिनिश किया है। तो जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जुलाई का था वो अगस्त का ओपनिंग बन जाता है। तो इस ओपनिंग बैलेंस में 300 की एक जॉब थी और 2900 की एक जॉब थी, 7 और 8, तो ये हमारे पास फिनिश्ड हो गई। तो इट मीन्स कि अब हमारे पास वर्किंग प्रोसेस में अगस्त में कोई भी काम नहीं है एंडिंग के तौर पे। और इसी तरीके से फिनिश गुड्स की अगर बात करें तो ये दोनों जॉब्स जो फिनिश्ड हुई ये भी सेल की जा चुकी हैं, और जो 2000 की जो फिनिश गुड्स एंडिंग थी जुलाई की, वो जो इसकी बिगनिंग के तौर पे हमने कंसीडर की थी वो भी अब यहाँ बिक चुकी है। तो इट मीन्स कि अब कोई भी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग भी मौजूद नहीं है, कोई हमारे पास फिनिश गुड्स एंडिंग भी मौजूद नहीं है, और ये सारी की सारी जो टोटल है जॉब्स वो बिक चुकी हैं, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए इसको वेरीफाई कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास मई की अगर बात कर लें तो मई में ये वर्क इन प्रोसेस का जो कॉलम है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग हमारा निल था, जो हमने कॉस्ट इनकट की यानी कि स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 700 था, और यही हमारी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग बची थी। तो हमने इसको जब टोटल में से माइनस किया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निल आ गई, इसीलिए हमारे पास फिनिश गुड्स ओपनिंग भी निल था और फिनिश गुड्स एंडिंग भी निल था, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमारे पास निल आई। तो आप देख सकते हैं ये कॉलम के बिल्कुल तहत ही ये मैकेनिज़्म यही इसी मैकेनिज़्म के तहत काम कर रहा है, इन्हीं कॉलम्स के मुताबिक। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और जो अब हमारे पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग थी तो नेक्स्ट मंथ की यानी कि जून की वो ओपनिंग बन जाएगी, यानी कि आप यहाँ गौर कर सकते हैं कि ये आपके पास जो एंडिंग है वो नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग बन जाएगी, तो ये ओपनिंग के तौर पे आपके पास मौजूद है। इसी तरह अब आपने जब अपने इन तमाम कॉलम्स को टोटल किया यानी कि इन सब को आपने यहाँ जब प्लस किया तो आपकी ये जो अमाउंट बनती है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाती है। तो आपके पास ये टोटल 4700 की अमाउंट मौजूद है। अगर आप गौर करें तो 4700 प्लस 700 तो ये आपके बन जाते हैं 5400, और 5400 में से आपने लेस करना है ये जो आपके पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की अमाउंट बची है। और ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की अमाउंट आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी ये अमाउंट है, मैंने आपको बताया था कि ये जो अमाउंट है ये आपकी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है। तो जैसे ही आपने इसको माइनस किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। तो आपने अब जैसे ही अपने इस कॉलम को टोटल किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। 2400 प्लस 1700, 4100 प्लस 700, 4800, तो ये वेरीफाई हो जाता है
इसी तरीके से फिनिश गुड्स ओपनिंग आपके पास कोई मौजूद नहीं था क्योंकि प्रीवियस पीरियड में कोई फिनिश गुड्स नहीं थी, तो वो निल हो गया। 4800 इस वक्त आपके पास अवेलेबल फॉर सेल हैं। इसमें से आपने लेस कर देना है जो कि आपकी रिमेनिंग अमाउंट बची, जो कि आपकी फिनिश गुड्स एंडिंग है। हमने आपको बताया था ये आपकी फिनिश गुड्स एंडिंग थी। तो इस फिनिश गुड्स एंडिंग को जैसे ही आपने लेस किया 4800 में से, तो 2400 यानी कि ये वाली जो आपकी अमाउंट है, ये वाली जो आपकी अमाउंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये आपकी ये आ जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि यहाँ अब आपके पास मौजूद है कॉस्ट इनकट की गई है। इस सबको आपने टोटल किया तो आपको 6100 की अमाउंट बन जाती है। इसी तरीके से 2900 प्लस 300, तो ये आपके पास हो जाती है 3200 प्लस 800 4000 प्लस 1600 5600 प्लस 5000 तो 6100। और जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग था आपका वो इस पीरियड का वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग बन जाता है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग बन जाता है। और आपने यहाँ इसको आप देख सकते हैं कि जो ओपनिंग बन जाता है आपने इसको यहाँ प्लस किया 6100 प्लस 600, तो आपके पास 6700 की अमाउंट आ जाती है। इसमें से आपने लेस किया वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जो कि 3200 है। हमने आपको बताया था कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ये 3200 की अमाउंट ही बनती है। इस 3200 को लेस किया तो 3500 आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ इसको टोटल करें तो ये 3500 ही आपके पास बनता है जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जो था जून का 2400, तो अब इसका बिगनिंग बन जाता है। तो 3500 प्लस 2400, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाती है 5900। 5900 में से 2000 जो ये मौजूद है आपके पास वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स एंडिंग, इसको आपने लेस किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी इस पीरियड की। तो आप इन जुलाई के जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आप इनकी गुड्स सोल्ड को टोटल कर लें तो आपको पता लग जाएगा 3900 की अमाउंट बन जाती है। इसी तरीके स्टूडेंट्स जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग था जुलाई का, तो वो ओपनिंग बन जाता है अगस्त का। तो अगस्त में वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग हमारे पास 3200 यहाँ मौजूद है, जबकि कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं की गई, वो एज इट इज़ अपनी जगह पे मौजूद है। इसी तरीके से अगर बात करें वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की, तो कोई वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में यहाँ मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स की जो 3200 की अमाउंट थी वही हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के तौर पे हमें नज़र आई, जो कि मौजूद है हमारे पास 3200 की। अब ये 3200 हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हैं और जो फिनिश गुड्स एंडिंग था वो हमारे पास 2000 था जुलाई का। तो इट मीन्स कि अगस्त का वो ओपनिंग बन जाएगा। तो 3200 ये और 2000 हमारे पास फिनिश गुड्स ओपनिंग है, तो 5200 की अमाउंट बन जाती है। और अब हमारे पास कोई भी फिनिश गुड्स एंडिंग यहाँ अवेलेबल नहीं है, सभी बिक चुका है, तो इसलिए ये जीरो हो जाता है, निल हो जाता है। तो इट मीन्स कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पूरी 5200 से ही यहाँ आ जाएगी। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन इस तरीके से हमारा वेरीफाई हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस के हवाले से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।